चौथा। आपे अंडज जेरज सेतज उत्भुज। आपे खंड आपे सब लोए। आपे सूत आपे बहुमणियां। कर शक्ति जगत परवे। आपे अंडज जेरज सेतज उत्भुज। आपे खंड आपे सब लोए। आपे सूत आपे बहुमणियां। कर शक्ति जगत परोए। आपे ही सूत धार है प्यारा। सूत खिंचे ढै ढेरी होए। मेरे मन मैं हर बिन अवर ना कोई। सतगुर विच नाम निधान है प्यारा। कर दया अमृत मुख चोए। रहाउ आपे जल थल सबत है प्यारा। प्रभु आपे करे सो होए। सबना रिज़क सामाहदा प्यारा। दूजा अवर न कोई। आपे खेल खिलाएंदा प्यारा। आपे करे सो होए। आपे ही आप निर्मला प्यारा। आपे निर्मल सोए। आपे कीमत पाएंदा प्यारा। आपे करे सो होए। आपे लख ना लखिए प्यारा। आप लखावे सोए। आपे गहर गंभीर है प्यारा। तित जेवर अवर न कोई। सब घट आपे भोगवै प्यारा। विच नारी पुरख सब सोए। नानक गुपत वरतदा प्यारा। गुरमुख प्रगट होए। नानक गुपत वरतदा प्यारा। गुरमुख प्रगट होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह साहिब जी दे पावन दरबार दीयां हाज़रियां भरदियां गुरु पातशाह साहिब जी दे अपने ही निज पावन स्वरूप शब्द नाल चित ला के जद आप सावधान ते इकाग्र चीत होए जुड़ मिल बैठे हो, पातशाह गुरुदेव जी दियां बेअंत महरमतां ते वडियाइयां जो सत संगत विच सदा वरतदियां ने,
ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਇਓ। ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਾੜ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਖਸ਼। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਸੀਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜਪਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ, ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਹੁ, ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੁਮਰੇ ਤਾਰੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀਮੁਖ ਵਾਕ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਸ਼੍ਰੀਮੁਖ ਵਾਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵ ਟਿਕਦਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਭੂਲੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤੇਗਾ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਨਾਮ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕਦੇ ਨਾ। ਜੋ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਮੇਜ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਿੰਦੇ ਆ। ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋ ਜਾ। ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਬੜੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਚਨ ਰਚਿਤ ਕਿਹਾ ਕੁਨ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਬਸਾਓ ਏਕੋ ਕੁਵਾਓ। ਕੁਵਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੁਵਾਣਾ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਧੁਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਗਤੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਿਕੀਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਆਪ ਹੈ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਲੜੀ ਚ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੁਕਮੀ ਸੱਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਠਹਿਰੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ। ਰਹਾਉ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਹਾਰ ਬਿਨ ਅਬਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜੋ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੈ? ਜੇ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪੱਖਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਾਤੂਆਂ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤੰਦ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਆਹ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੀ ਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਨਾ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਕਰ ਦਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਚੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਬੁੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਦਕੇ ਹੀ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ 550 ਵਾਰੀ ਲਗਭਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਲਿਖ ਲੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਪੋਥੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਵੀ ਤਿਨਾਕਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਗੋਚਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕਾਰ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਆਕਾਰ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਆਕਾਰ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਖੀਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤੱਵ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਛੋਹ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ
जे जरा का एहसास करके वेखांगे साडे कन्नां दे पड़दे ते एक छोह प्राप्त होंदी, तां ही ते धुन साडे दिमाग तक पहुँचती है। और ये धुन तरंग करके जो अदृश मंडल च भावें है, पर फिर भी उहदी एक होंद है, उहदी एक अपनी वखरी बख्शिश भरी होंद है, उसका प्रभाव है, उसकी फ्रीकुएंसी अलग अलग है, वो साडे कन्नां तक पहुँचे, क्योंकि उसकी कोई होंद आकार संबंध शब्द है। गुरु शब्द है, पर शब्द दे विच की है, बस यही तो लभना होंदा शब्द दे विच की है। आपां कई बार विचार चुके हैं, शब्द विच ज्ञान हुंदा है। जिहड़े भी संसार का कोई भी शब्द होएगा, शब्द दे विच ज्ञान होएगा। ज्ञान का स्वरूप साडे तक किवें पहुँचदा है? ज्ञान विचारां करके ट्रैवल करता है, एक तो दूजे तक जो ज्ञान जाता है वो विचार करके जाता है। अध्यापक तो बच्चे कुछ विचार सुनते ने ते ज्ञान प्राप्त करते हैं। आ घरां विच संसार का सारा ज्ञान विचारां करके जाता है। असीं बात की कहने, देखो जी ये मेरे अध्यापक का विचार है, अज असीं कहने ना ये सुकरात का विचार है, फलाने का विचार है, टॉलस्टॉय का विचार है, उहदा विचार है, उहदा विचार है। साडे कोल ते ज्ञान है, पर विचार उहदे तो आया, विचार उहदे थ्रू सानू प्रकट होया। ज्ञान ते गुरु दा विचार मिलता है। शब्द दे विच ज्ञान है, ज्ञान विचार करके पहुँच करता है। तो चेता रखना, विचार दे विच की हुंदा है? विचार विच अमृत हुंदा है, विचार दे विच जहर हुंदा है। शब्द दे विच ना अमृत हुंदा है ते ना जहर हुंदा है। शब्द एक बोल है, शब्द एक धुन है। हो सकता है वो शब्द किसे ते कोई प्रभाव ना पावे, वही शब्द किसे ते जहरीला प्रभाव पा देवे, वही शब्द किसे ते अमृतमय प्रभाव पा देवे। जैसी जैसी अगले की प्रकृति होएगी ना, वैसा वैसा वो शब्द उसनूं प्रभावित करेगा। असी किसी होर की गल नहीं करते, गुरबाणी पढ़ते हैं। एक साधारण व्यक्ति बड़े आराम दे नाल गुरबाणी का पाठ कर रहा होवे, उसके सन्मुख बैठा हो बिल्कुल मूड व्यक्ति, उसके सामने बैठा हो बिल्कुल व्यक्ति हो जो खर है, उसदे उत्ते शब्द का कोई असर नहीं पैंदा। कठोर मंडल है, पत्थर है, उत्ते शब्द का कोई असर नहीं पैंदा। उत्थे बैठा है गुरमुख प्रकृति का संत स्वरूप, भावें वो किसी धर्म का होवे, निर्मल हिरदे वाला होएगा, उहदे उत्ते उस शब्द का प्रेम भाव प्राप्त होएगा। असीं ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट लोगों तो सुने ने, कहते भाषा तो समझ नहीं आई पर आनंद बड़ा आया, क्योंकि वह प्रकृति उसके अंदर निर्मल सी। बेशक बोल समझ नहीं उहदे आया, पर उन्होंने आनंद आ गया। तो उत्थे ही एक बैठा हुंदा चुगल निंदक विकृति प्रवृत्ति वाला, क्योंकि कहता मैं इत्थे बैठा बैठा बोर हो गया, चल बाहर चलीए। सुनदा तो वही शब्द अमृतमई है, एक दे उत्ते कोई प्रभाव नहीं पैंदा, एक आनंद लैंदा है, तो एक इत्थे आके बोरीयत महसूस करता है। मैं नहीं कह सकता, बड़ा प्यारा बचन, जदों कुड़ियार इत्थे आके बहिंदा है तो कुड़ियार की करता है, ओए वल छल कर झट कढ दे, कुड़ियारां चित उदास। बहना पैंदा है कि फिर समाज करके, एक दूजे खुशी कमी करके, बरादरी करके उन्होंने इत्थे बहना पैंदा है, पर ओए वल छल करके बड़ा औखा समा गुजारते ने। 10 20 30 मिनट जो कीर्तन हो रहा होंदा है, उन्हां वास्ते बोझ हो जाता है, उन्हां दा चित उदास हो जाता है। जिवें ओही सूरज सारी दुनिया नूं जीवन दिंदा है, सूरज से चढ़न ते दुनिया पर दी वनस्पति तो लैके जीव जंतु तक खुश हो जाता है, पर उल्लू सड़न लग पैंदा है। उल्लू सूरज नूं बुरा भला कहन लग पैंदा है, उल्लू सूरज का बुरा लोचता है। सूरज का तो दोष नहीं ना, उल्लू की प्रकृति का दोष है। इसे तरह शब्द विच की समझना असीं किते समझ सकी। आपां बाणी पढ़ते हाँ, बाणी शब्द स्वरूप है। शब्द विच की है? शब्द विच ज्ञान है, ज्ञान विच विचार है, विचार अमृत है, अमृत नाम है, नाम ते अमृत इको ही है। जिवें एक सिक्के दे दो पहलू होंदे ने, एक मिलेगा तो दूजा मिलेगा। जे कोई कहे कि मेरे फलाने व्यक्ति को नाम है
तो समझ लियो अमृत है। तो जे कोई कहे कि हाँ जी तो अमृत प्राप्त है, तो समझ लेना उसके को नाम प्राप्त है। असीं तुसीं किसी होर ही मंडलों जी रहे हैं, क्योंकि असीं गुरबाणी के अमृत नूं, गुरबाणी के इस नाम नूं पकड़ नहीं पा रहे। अमृत नाम निधान है, मिल पी बहो भाई। महाराज ने सतगुर विच, सतगुरु दे विच की है? सतगुरु च नाम निधान है प्यारा। सतगुरु दे विच नाम है, सतगुरु दे विच नाम का खजाना है। हुण ये सतगुरु दे विच जो नाम का खजाना है साडे तक किवें पहुँचता है? कर दया अमृत मुख चोए। जदों सतगुरु अपने सिख ते दया करता है तद जाके किते ये अमृत प्राप्त होंदा है। क्योंकि बाहरला शब्द मुख चोए है, मूँह विच मुख च अमृत चो दिंदा है, पर ऐसा फिजिकल आपां कदे वेखिया तो नहीं ना भी किसी के मूँह च महाराज ने तो अमृत चोया होवे। पर पढ़िया बहुत बार हर अमृत हर मुख चोया, बिहागड़ा में भी पढ़िया होना अमृत हर मुख चोया, फिर मरदा बहुड़ जीवाया राम। ये जो मुख अमृत चोना ना, ये ध्यान मुख विच है, शरीरिक मुख विच नहीं गा। शरीरिक मुख विच तां केवल पाहुल पैंदी है। शरीरिक मुख विच तां लोग पहला चरण पाहुल दे घुट भर लैंदे सन, अज खंडे की पाहुल नूं मुख च पाया जाता है। अज खंडे की पाहुल नूं अखां छिट्टे पाए जा सकते हैं। खंडे की पाहुल केसां च पाई जाती है, अखां छिट्टे पाए जाते हैं। खंडे की पाहुल दे 5 घुट भरे जाते हैं। पर आ जो अमृत मुख चोया है ना, ये ध्यान मुख दे विच अमृत चोया जाता है। जदों कोई गुरसिख सावधान सुचेत होके अपने सतगुरु दे सन्मुख हो जाता है, फिर शब्द धुन दे सदके उहदे ध्यान मुख विच नाम दा अमृत चोया जाता है। इसे करके अज तक दे सियाणियां दे मंडलां च ये कहा जाता है कि भाई जदों भी कुछ सुनना अपने गुरु तो प्राप्त करना है, अपने गुरु दे सन्मुख होके बैठिया करो। शरीरिक तौर पर समाजिक तौर पर आपां नूं संगत विच बैठण दा समा मिलता है, सन्मुख होके बैठिया करिए। जिथे इहो जिहा माहौल ना होवे कि प्रकाश नहीं होया, तो कम से कम हिरदे करके गुरु की हजूरी जदों भी किते बाणी पढ़न उचित करे, बाणी पढ़न का समा लग जाए, उदों सन्मुख होके पढ़िए, सन्मुख होके पढ़िए। जो सन्मुख होवांगे तो फिर गुरु अपने अमृत नूं साडे मुख विच चोवेगा। फिर की होएगा जी? असीं की करना है? हाँ जी, आपे जल थल सबत है प्यारा, प्रभ आपे करे सो होए। जिसनों अमृत प्राप्त हो जाता है उन्हें समझ आ जाती है, क्योंकि अमृत एक समझ है। अमृत ज्ञान स्वरूप है ना, ज्ञान क्यों प्रकट होता है, नाम स्वरूप है ना। अमृत एक समझ दिंदा है, अमृत एक बोध दिंदा है, अमृत एक सोची दिंदा है, अमृत एक बल दिंदा है। अमृत अंदर दे विचारां नूं बदल दिंदा है। अमृत का मतलब केवल कोई बाहरला वस्तु नहीं है कि वस्तु पॉकेट च पा ली, हाँ जी मैं ले लिया, नहीं। अमृत एक समझ है, अमृत एक जीवन है, अमृत एक अवस्था है, अमृत एक दृष्टिकोण है, अमृत एक विजन है। इसे करके लोग कई बार गुरबाणी नूं सिद्धांत कहते हैं, ठीक है कहना पैंदा कि लोकां च धारा चल पई है, लेकिन असलीयत विच जे समझ सकीए गुरबाणी सिद्धांत नहीं जे, गुरबाणी एक दर्शन है, गुरबाणी एक विजन है। जिस पछी है ना गुरबाणी की है, तो सतगुरु आप ही गुरबाणी लिखते, गुरबाणी इस जग में है चानण है। गुरबाणी चानण है, अमृत एक चानण है। अमृत तो जदों ये अमृत प्राप्त होता है तो फिर विचार बदल जाते हैं। पता लगता है वो करता पुरख वाहिगुरु आप ही जल थल सबत है प्यारा। जल दे विच भी है, जल भी परमात्मा ही है। इन्हों जी कह सकते हैं आ जो जल है ना, जल की है, जल भी तो परमात्मा ही है। थल धरती की है, धरती तो परमात्मा ही है। बाहरों असीं दे कई वख वख स्वरूप लेने आ, वख वख दे गुण ते धर्म कवांगे, वख वख असीं 5 तत्त कवांगे,
पर सानू भी तो पता है ना, गुरबाणी पढ़ने वाले ज्ञानी को तो पता है ना कि ये तत्व भी तो करते तो ही प्रकट होए ना, पंचायन आपे हुआ है ना। ये पांच तत्व उहदे आप ही तो बने ने। कोई वक्त सी ये पांच तत्व नहीं सीगे ना, तो उदों आप तो सी ना। कोई वक्त सी जदों केवल सच सी, ते सच तो ही हौली हौली ये तत्व पैदा होए ना। साचे ते पवना भया, सच तो पवन बनिया ना, ते पवन है ते जल होए, पवन तो जल बनिया ना। जल ते त्रिभुवन साजिया, जल ही जीवन है, आ सारा संसार ही जीवन साजिया। तो जे जल तो जीवन साजिया क्या है, जल जीवन रूप है, तो असीं मनदे परमात्मा जीवन रूप है। फिर पता लगता है हाँ ये लैवल ने साडे बुद्धि के विकास लैवल होंदे ने, जिथे कुछ जाके समझ आउंदी। जो बच्चा पहली बार स्कूल दाखिल होंदा कुछ नहीं पता होंदा, पर जिस दिन वही बच्चा MA पास कर लेंदा उस दिन सब कुछ पता लग जाता है। वो विचकारले 16-17 पड़ाव पार कर जाता है। इस तरह असां भी देखते हैं, सानू तो नहीं पता, सानू पत्थर पानी सब कुछ अलग अलग नज़र आ रहा है, पर जो गुरमुखता के लैवल पर पहुँच गया, जिसनों अमृत प्राप्त हो गया, वो कहने लगे जल भी तो परमात्मा है, ये थल भी तो परमात्मा है, ये हवा भी तो परमात्मा है, आज जो दृश्यमान है ये परमात्मा है, जो दिशा है सो तेरा रूप है। ये कह फिर समझ आती, आपे जल थल सबत है प्यारा। जल भी आप है, थल दे विच भी आप है, सब थां ते आप है, ते नाल ही नाल आपे करे सो होए। इस संसार जितनी क्रियावां हो रही ने, भावें एक दूजे नाल संबंधित सहमत ने, ते भावें किसी दे नाल विरोधी क्रियावां हो रही हो, ते अपनियां उहदे हुक्म च उहदे आदेश विच हो रही हैं। सबना रिज़्क़ समाहंदा प्यारा, दूजा आवर न कोई। क्योंकि उसने जल ते थल दे सर्कल दे विच, जे आपां किते समझ सकीए, जल दे सदके थल दे उत्ते ते पवन दे सहारे ते संसार दा जीवन बनाया है। ये वड्डे 3 तत्त ने जिस आपस में जुड़े हुए ने। पवन के सहारे ते है, इस करके पवन का थंबा है, और जितना जीवन स्वरूप है ये पवन के थंबे के सहारे खड़े। जल की भीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा। असंसार सारा की पवन के थंबे, पवन के सहारे ते चलता है। बनिया जल तो है, बनिया किहदे उत्ते है, धरती के उत्ते है। ये 3 तत्त वो ने जिन्हां इस करके संसार का सथूल स्वरूप रचिया गया। तो इन्हां दे विच इन्हां तिन्नां दे बहुतात साडे सारियां दे शरीरां दे विच है। असीं सारे जानते हैं कि 5 तत्तां दा साडा शरीर है, तो सारे जानते हैं कि आकाश का तत्त, तो सानू समझ ही सिवाय शब्द तो आकाश के तत्त की सानू पकड़ नहीं होती। अग्नि का तत्त जिहड़ा है वो बहुत सूक्ष्म दिखता है, क्योंकि अग्नि का सेक नूं तो अनुभव करते हैं, पर अग्नि थां नहीं मलदी। ये चेता होवे, पवन थां मलदी है, पानी थां मलदा है, धरती तो खैर है ही थां स्वरूप, ना आकाश थां मलदा जे, ते ना अग्नि थां मलदी जे। अग्नि हर थां ते गर्म हो जाती, रूप बदल लेंदी है। तो महाराज कहने फिर जितने जीवन ने ना, इन्हां सारिਆਂ ਦਾ रिजक भी तो होएगा ना, क्योंकि जीवन पैदा कीते ते रिजक भी है ना, तो सारिਆਂ ਦਾ रिजक भी फिर आप ही करता है ना। सबना रिजक समाहंदा प्यारा, सारिਆਂ तक रिजक की भी पहुँच जाए। शायद इसे करके जे इस सूत्र नूं बारीकी ना पकड़िया जा सके, ते विच पाथर कीट पाखाणी है, पत्थर दे विच भी कीड़ा है, और उसनूं इसे ही सूत्राधार भाव दे नाल रिजक मिलता है। असीं कहांगे किवें हुंदा, की हुंदा, लोग तर्क वितर्क उठांदे रहणगे, पर अज तक दे वड्डे मनदे ने कि पत्थर दे विच भी कीड़ा हुंदा है, ते जीवन उसनूं प्राप्त हुंदा है, ते जीवन जल ते पवन दे सहारे टिकदा है। क्योंकि उहनूं दुनिया का पत्थर कठोर होएगा, पर उस कीट वास्ते पत्थर कठोर नहीं है, वो उत्थे पहुँचता है, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। इस करके उहदे वास्ते कोई मुश्किलात ही नहीं है। हाँ जी।
आपे खेल खिलाएंदा प्यारा, आपे करे सो होए। इंज पता लगता कि सारा संसारक खेल है, सब जग तेरा खेल है। आवन जान एक खेल बनाया। इथों समझ आते कि सारा उहदा अपना एक खेल है। साडे वास्ते बहुत कुछ बनना ते बहुत कुछ विगड़ना बहुत वड्डे काम ने। साडे ज्ञान के मुताबिक सदियां लग जांदियां ने किसी सभ्यता के विकास विच ते सदियां लगदियां ने विनाश विच। और जो हुण तक दा आपां इतिहास पढ़ांगे, सदियां दे विच मनुख ने विकास कीते ते दूजी धारा आई, उन्हें उहदा विनाश किया ते दूजी धारा का विकास हो गया। आ मोहन जो दाड़ो जिन्ना पढ़े है उन्हें पता है कि कदे ये सभ्यता सी ना, सदियां दे विच उहदा विकास होया होना, सदियां दे विच उहदा विनाश होया। एक दिन तो है नहीं कि विनाश हो गया। हो सकता है विकास सदियां विचों वे ते विनाश पल विच भी हो सकता है। अज जो सुनामियां आउंदियां ने या जदों किते भुचाल होंदा है, वड्डे वड्डे शहर पलां दे विच गर्क हो जाते हैं। आ वडेरियां ने आ कोटा शहर गर्क होंदा सुनिया होना। असीं उत्तराखंड दे विच आ पिछले 5-7 सालां दे विच असां वेखिया होना कि हालत वरती। आ गुजरात का भुज शहर आ 2002 दे विच देखिया पलां दे विच गर्क हो गया। ऐसे बहुत निशान ने धरती ते जिन्हों बनदियां बनदियां साल लगे, सैकड़े साल लग गए, पर विनाश करदे उन्होंने पल भी नहीं लगता, तोड़ के रख दिंदा है। इसनूं इंज समझना चाहिए, निक्के निक्के बालके दरियावां दे किनारे ते गिल्ली मिट्टी अपने पैरों ते थप थप के घर बना लेंदे ने। आ बजुर्गों ने इहो खेडां खेडियां होणीआं ने। दरियावां दे किनारे रेता दे विच निक्के निक्के बालके घर बना लेंदे ने। बड़ी मेहनत दे नाल, बड़ी मुशक्कत दे नाल रेता दे किनारे ते लोग अज भी समुंदर के किनारिਆਂ ते बीच ते लोग ਇਹੋ ਜਿਹੇ खेड खड़ोने थपते ने। पर एक लहर आउंदी है, एक पल दे विच सब को मिटा के ले जाती है। एक खेड है, जिवें बच्चे निक्के निक्के घर बनाउंदे ने, खेड के जान लगे आपे ढा जाते हैं। ये पता लगता है सारा संसार का ये अपना खेल है। साडे वास्ते सदियां गुजरदियां ने, पर उहदे वास्ते सिर्फ एक खेल है। साडे वास्ते जीवन ते मौत के सवाल ने, साडे वास्ते दुख ते दर्द के सवाल ने, पर करते की नज़र में तो खेल है। अज भी असीं देखते हैं, कई बार देखे होना है। हुण सरकारी तौर पर पाबंदियां ने, कई बार बाज़ारां विच बाजी कराउंदे सी, निक्के निक्के जानवर नचाउंदे सी। हुण जिस जानवर के नक च नकेल पा के नचा रहे हो, उहदे वास्ते तो दुख का जीवन है ना, पर बाकियां वास्ते ताड़ियां वजाउणियां खेल है ना। आ पुराना एक मुहावरा सी, चिड़ियां की मौत ते गवारां दा हासा, ये सदियां तो रहे ना। बहुत सारे खेल तमाशे, किसी को पीड़ा होंदी, किसी दुख होंदा, तकलीफ होंदी, लोग ताड़ियां वजाते हैं, उन्होंने रंग रूप बदल जाते हैं। सदियों तो ऐसा चलता आया, पर चेता रखना करते का भी खेल ऐसा ही है। ये असीं जीवन मरते हैं, जन्मते हैं, मिटते हैं, पिसते हैं, पर वह तो एक खेल है भाई। और अपना खेल खेलता है प्यारा, आपे करे सो होए। इसे करके गुरु नानक जी कहते ने, इस जगत विच जो कुछ भी हो रहा जे हुक्मे अंदर, सब को बाहर हुक्म ना कोई। हाँ जी, आपे ही आप निर्मला प्यारा, आपे निर्मल सोए। साढ़े ज्ञानियां ने एक विचार बनाई है कि जदों असीं कोई कर्म करते हैं तो वह कर्म के सदके साढ़े अंदर मैल लगती है। जिथे भी किते किसी प्रकार की भी कोई एक्टिविटी, कोई कर्म क्रिया होती है, उस कर्म क्रिया के सदके उत्थे कुछ ना कुछ मैल, उसका कोई अंश, कोई प्रभाव रह जाता है। यानी सारे मनते हैं, और समाजिक ते परिवारिक धारावां असीं देखते हैं ऐसा होंदा है। असीं धो के कपड़े पाउने आ, अस बाद च कहने कि नहीं जी दोबारा पाने योग नहीं, मैले हो गए। पर कदे ऐसा वेखिया है, सारा कुछ करके भी दुनिया की दृष्टि चंगा ते मंदा है, बहुत उच्चा ते नीवा है, उन्होंने कोई मैल ही ना लगती होवे, और कौन हो सकता है भी सारा कुछ भी हो रहा है। दुनिया के चंगे तो चंगे करतब भी हो रहे, दुनिया के मंदे तो मंदे करतब भी हो रहे, दुनिया के पवित्र तो पवित्र करतब भी हो रहे, तो दुनिया के पलीत तो पलीत करतब भी हो रहे।
ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੰਨ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਸਤੁੱਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਸਤੁੱਤ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੇ ਜੋ ਸਵਈਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਅਕਾਲ ਸਤੁੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰੂਪ ਆ ਧਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਮਾਜ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਦਾਨਵਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਗਾਨੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਕਹੂੰ ਦੇਵਤਾਨ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਮੈਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦਾਨਵਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਨਿਦਾਨ ਜਾਂ ਲੇਤ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਕਹੂੰ ਨਿਜ ਨਾਰ ਕਹੂੰ ਪਰ ਨਾਰ ਕੇ ਨਿਕੇਤ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਚੰਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੌਣ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਰਵ ਮਹਿਲਾ ਸੂਰਜ ਵੀ ਭਾਈ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਰਵ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਚੰਦ, ਚੰਦ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਹਿਜ ਕੀ ਠਹਿਰ ਕੇ मैले ब्रह्मंडाइश कै ईश, जितने ईश्वरी स्वरूप तुसां अपने बने साडा फलाना इष्ट है फलाना इष्ट है, सब च किते ना किते मैल जे। ते कहने लगे सारे च मैल, फिर की कहना एक हर निर्मल। सारे पसारे दे विच रह के भी सारे पसारे च किते ना किते मैल हो सकती है, पर एक हर निर्मल, एक वाहिगुरु निर्मल जी। इसे करके गुरु नानक जी कहते ने आ संसार दे घर परिवार संसार च तू ते पापां ते पुन्नां दी व्याख्या मत करिया करो। असीं यही करते रहने आ, ये ते कहावतां ने लोकां दी बनाईयां होईयां, पाप पुन्न दो भई कहावत। ते महाराज की करिया करिए, कहण लगे बस निर्मल ना जुड़ जो, निर्मल ते सब निर्मल होवे। जे निर्मल दे नाल वाहिगुरू जी दे नाल ना जुड़े मन मैला रह जाएगा, तो जे मन मैला हो गया जिन्नी मर्जी पूजा पाठ करोगे सब मैली हो जाएगी। मन मैले सब कुछ मैला, तन धोता है मन अच्छा ना होए। इस करके कहने लगे निर्मल ते केवल निर्मल परमात्मा आप है। आपे आप निर्मला प्यारा, तो फिर आपे निर्मल सोए, आप ही निर्मल जे, उस तो बिना होर कोई निर्मल नहीं जे। बाकी सारी कायनात विच मैल है, वो निर्मल है। हाँ जी। आपे कीमत पाएगा प्यारा, आपे करे सो होए। ते सारे जितने भी क्रियात्मक कर्म हो रहे ने, आखिर हर कर्म की वैल्यू पैंदी ना। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਪਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਪਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਡਾਢੇ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, कदर नहीं पाते। पर चेता रखना, अगर काम करने वाला ईमानदारी दे नाल अपना काम करता है तो उहदे काम की कीमत पैंदी है, क्योंकि करता कीमत पा देता है, अज नहीं तो कल पा देगा। और फिर जिन्हें उहदे काम की कीमत नहीं पाई होंदी उतों वसूल भी वो कर लेंदा है, और यदा भी उहदा अटल नियम है। क्योंकि संसार इसे करके सानू सियाणे कि भाई तुसीं काम करया करो, सेवा करया करो। अगीता वाले भी की कहते हैं, कर्म करया करो फल की इच्छा न, क्योंकि हर कर्म की कीमत, हर कर्म का फल करते नूं पता है की देना तैनूं। तो जो कीता है
ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਉਹ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਿਲ ਜਿਤਨੇ ਕੀਤੇ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਂਦਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੈ ਘਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿਤਨੀ ਘਾਲਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪੇ ਅਲਖ ਨਾ ਲਖੀਐ ਪਿਆਰਾ, ਆਪ ਲਖਾਵੇ ਸੋਏ। ਉਹ ਆਪ ਅਲਖ ਹੈ। ਅਲਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਨਾ ਛੂ ਕੇ, ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲਖਿਆਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਆਪੇ ਅਲਖ ਹੈ। ਅਲਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਲਖੀ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਧ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਤਨੇ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ, ਟਿਕਾਓ ਬਣ ਸਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਆਸੀਸ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।